الحكيم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. محترم حاضرین، ایک اہم چیز کی طرف تنبیہ وہ یہ کہ بارہا کئی دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ تراویح چل رہی ہوتی ہے اور ایسی حالت میں چند لوگ آ کر پیچھے تنہا نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ ادھر تراویح چل رہی ہے، کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں اور اکیلے تنہا وہاں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے میرے بھائی۔ دیکھیے، اگر کسی انسان کی فرض نماز چھوٹ گئی ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوا اور فرض نماز ختم ہو گئی ہے، تو دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی، یا تو تراویح کی نماز شروع ہو گئی ہوگی یا ابھی لوگ سنت پڑھ رہے ہوں گے۔ تو ایسی حالت میں جو انسان مسجد میں داخل ہوا کہ لوگ ابھی سنت ادا کر رہے ہیں، نماز ختم ہو چکی ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ تنہا اپنی فرض نماز ادا کرے۔ لیکن اگر وہ اس حالت میں داخل ہوا کہ تراویح کی نماز شروع ہو گئی ہے اور اس کی فرض نماز چھوٹ گئی ہے، تو اب کیا کرے گا وہ؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تراویح کی نماز میں عشاء کی نیت سے داخل ہو جائے۔ تراویح چل رہی ہے، آپ آئے، تو آپ کے لیے بہتر کیا ہے کہ آپ عشاء کی نیت سے تراویح میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک، شامل ہو گئے آپ۔ اب امام صاحب 2 ہی رکعت پڑھیں گے، تراویح 2 ہی رکعت کر کے ہیں، تو 2 رکعت جب امام صاحب پڑھیں گے، سلام جب پھیریں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کی جو بقیہ 2 رکعت ہے، عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، تراویح 2 کر کے پڑھی جا رہی ہے، تو جب امام صاحب سلام پھیریں تو آپ اٹھ کر کے اپنی 2 رکعت مکمل کر دیں۔ ٹھیک ہے، 2 رکعت اپنی مکمل کر کے سلام پھیر کے پھر امام کے ساتھ بقیہ تراویح میں، بقیہ نماز میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک، یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ ایک مسئلہ یہ ہے، بسا اوقات ایسا بھی لوگ کرتے ہیں، ایک تو یہ غلطی ہو رہی ہے کہ تنہا کے نماز پڑھتے رہتے ہیں، ادھر تراویح بھی چلتی رہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اگر تنہا نماز پڑھیں گے، ادھر تراویح چلے گی، آپ قرات بھی صحیح سے نہیں کر پائیں گے، خشوع خضوع بھی نہیں رہے گا، آپ سورہ فاتحہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ پائیں گے، اگرچہ آپ کو سورہ فاتحہ ازبر یاد ہے، لیکن ادھر قرات چل رہی ہے، آپ ادھر آہستہ آپ سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، آپ نماز صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے۔ آپ آیتوں میں کمی بیشی ہو جائے گی، اذکار میں کمی بیشی ہو جائے گی، کیونکہ بلند آواز سے قرات ہو رہی ہے، تو آپ کو ڈسٹرب ہوگا، اس میں آپ کا خشوع خضوع بھی نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ تراویح میں عشاء کی نیت سے داخل ہو جائیں اور اپنی بقیہ پوری نماز کریں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی فرض نماز پڑھ لیا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا تھا، کوئی اس کو ضرورت پیش آ گئی، وہ چلا گیا قضاء حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے گیا، اب آیا امام صاحب کی 1 رکعت ہو گئی ہے یا اسی رکعت میں ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں، فوراً وہ آ کے شامل ہو جائے امام کے ساتھ، لیکن آیا تراویح کی 1 رکعت ہو گئی، اب یہ نہیں کہ وہ پیچھے کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعت پوری کرے گا، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر امام صاحب کی 1 رکعت تراویح کی ہو گئی ہے آپ کے آنے کے بعد، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تراویح میں امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ اکیلے وہاں کھڑے ہو کر اپنی پوری نماز پوری کر لیں، 4 رکعت چھوٹی ہے، 2 رکعت چھوٹی ہے، 1 رکعت چھوٹی ہے، وہاں پیچھے آپ اپنی پوری کرتے رہیں اور ادھر جماعت بھی چلتی رہے،
नहीं नहीं, आप क्या करें कि आप वहां पर इमाम के साथ जमात के साथ शामिल हो जाएं। अगर आपकी एक रकात छूट गई थी, आप एक रकात पूरी कर लें। दोनों रकात आपकी छूट गई थी, इमाम सजदे में था, तशहुद में आखिरी दूसरी रकात में था, आप इमाम के साथ शामिल हो, जमात में शामिल हो जाएं। बकिया सलाम फेरने के बाद एक रकात दो रकात जितनी भी छूटी आप उसको पूरा कर लें, फिर इमाम के साथ कंटिन्यू करें आप। इसी तरीके से एक तीसरी हालत ये भी है कि बस बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी 4 रकात छूट गई है, 6 रकात छूट गई है, तो वो भी पीछे पूरी करते रहते हैं। जब भी सलाम फेरो 8-10 लोग 5 लोग वहां पढ़ते रहते हैं नमाज। जब भी सलाम फेरो, आज कितनी तरावी हो गई? 13 हुई कि 14? 14 तरावी हो गई। कोई दिन ऐसा नहीं गया है कि सलाम फेरने के बाद कुछ लोग वहां नमाज ना पढ़ रहे हो। कौन सी नमाज पढ़ रहे होते हैं? तरावी इधर चल रही है ना भाई, वहां कौन सी नमाज हो रही है अकेले अकेले? हमको समझ में नहीं आ रहा है। कई दिनों से मैं सोच रहा हूं इस पे तंबीह की जाए, आज ज़हन में ये बात आ गई। तो इधर चल रही है तरावी, वो पीछे कौन सी नमाज उनके अकेले अकेले चल रही है? ये दुरुस्त नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल गलत तरीका है। आप इमाम के साथ पढ़ें, जमात के साथ नमाज पढ़ें। आप कितनी बड़ी फजीलत से महरूम हो जा रहे हैं अगर आप तन्हा पढ़ रहे हैं। आपकी 2 4 6 रकात भी छूट गई है, आप इमाम के साथ पढ़ें। इमाम आप 6 रकात मान लीजिए, 4 रकात आपकी छूट गई है, तो इमाम बकिया जो 4 रकात आप इमाम के साथ पढ़ें, 4 हो गई। फिर वितर की 2 पढ़ता है, 6 हो गई आपकी। फिर जो आखिरी रकात पढ़ता है, आप उसमें क्या है, सलाम फेरने के साथ खड़े हो जाए। आप क्या करेंगे? खड़े हो जाएं, क्योंकि कितनी रकात आपको पढ़नी है? 11 पढ़नी है ना। आपकी 4 छूट गई है, आप आए हैं, इशा की नियत से भी दाखिल हो गए, तो 2 रकात आपकी तो ऐसी चली गई तरावी की। तो आप उसी नियत से इशा में दाखिल हो, इशा की नियत से दाखिल हो जाएं, तरावी की नियत से दाखिल हो जाएं, तो बकिया आपकी जितनी रकातें छूटी हैं वो बाद में आप अदा करें। वितर जो 1 रकात आखिर में पढ़ी जाती है, 3 रकात वितर होती है, पहले 2 फिर 1, तो 1 पर जब इमाम सलाम फेर देता आप खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं, आप अपनी 2 पूरी कर लें। अब आपकी कितनी हुई, 6 हुई कि 8 हुई कि 10 हुई, वो आप उसके हिसाब से बकिया पूरी नमाज कंटिन्यू कर लें, आप 11 पूरी करें। ठीक है, ये तरीका है, तो इसमें गलती ना करें। अगर आप तनहा वहां आकर पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत बयान की है तरावीह की, मन क़ाम मअल इमामी हत्ता यनसरिफा कुतिबा लहू क़ियामुल लैला, जिसने इमाम के साथ पूरी नमाज पढ़ी यहां तक की नमाज खत्म हो गई, तो उसको पूरी रात क़ियामुल लैल और तहज्जुद पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे, तन्हा अपनी नमाज पूरी करेंगे, तो उस फजीलत से हम महरूम हो जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है, बहुत सारे लोग जमात चलती रहती है, पीछे बैठे रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, बैठने की बात दूर किया, बात भी करते रहते हैं। ये बहुत खतरनाक मसला है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे, सहाबा नमाज पढ़ा करते थे, तो कुफ्फार क्या करते थे? चीखते थे, चिल्लाते थे, सीटियां मारते थे। तो ये किनकी अलामत है? ये संगीन मसला है कि जमात चल रही है, नमाज चल रही है, पीछे हम बैठ के गपशप करें, हंसी मजाक करें, वहां जाके बाहर बैठे रहें। बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है भाई। आपको पढ़ना है तो खुशू के साथ आप पढ़ें, नहीं तो सीधा घर चले जाएं। आपको कोई जबरदस्ती यहाँ पढ़ने के लिए नहीं बोलता है, शरीयत आप पर जबरदस्ती भी नहीं कर रही है कि नहीं मस्जिद में रहना ही है आपको। नहीं, आपको फर्द नमाज हो गई, सुन्नत तो आपने अदा कर ली, नहीं पढ़ना आपको, घर चले जाएं, सो जाएं आप। लेकिन मस्जिद में बैठे रहें, गपशप करें, हंसी मजाक करें, बातचीत करते रहें, बगैर किसी वजह के आप जाकर वजू खाने के पास बैठे रहें, गेट के पास बाहर खड़े रहें, ये सब तरीका गलत है। यहां तक कि अगर किसी ने नमाज पढ़ ली हो, मसलन ऐशा की नमाज किसी ने पढ़ भी ली हो, अब यहां आया इस मस्जिद में ऐशा की नमाज चल रही है, तो वो भी नहीं बैठ सकता वहां पीछे, नहीं जायज है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, देखा कि कोने में 2 4 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा मनाअकुमा अन तुसल्लिया माना, कौन सी चीज तुमको रोक दी कि तुम दोनों हमारे साथ नमाज पढ़ते? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं,
सलाम फेरने के बाद देखे कि मस्जिद नबवी के कोने में दो सहाबी बैठे हुए हैं। आपने पूछा भाई हमारे साथ तुमने क्यों नमाज नहीं पढ़ी, वहां कोने में क्यों बैठे थे, नमाज चल रही। तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कद सल्लैना फी रिहालिना, हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने रिहाल में, अपने अपने गुरफों में, अपने अपने कजावे में हमने नमाज पढ़ ली थी। आप जो नमाज पढ़ा रहे हैं हम लोग पढ़ लिए हैं फर्ज नमाज हो अपने अपने कजावे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, नहीं, अगर चाहे तुमने पढ़ ली है, अगर तुम मस्जिद में आए और नमाज हो रही है, अगरचे वो नमाज आपने पढ़ ली है, मसलन दूसरी मस्जिद में पढ़ ली हो, या इसी तरीके से बाज ऐसे गांव हैं जैसे हमारा मसला है, हम अपने गांव जाते हैं तो हमारी मस्जिद दूर है अहले हदीस की, तो गांव की जो करीबी मस्जिद हमारे गांव में हनफी की मस्जिद है, हम उसमें नमाज पढ़ते हैं। कभी कभी अव्वले वक्त में हम घर ही में नमाज पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनकी असर की नमाज कब होती है, जब सूरज एकदम बिल्कुल पीला हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तिल का सलातुल मुनाफिक, ये मुनाफिक की नमाज होती है। सूरज में जर्दी आ जाए, इतनी ताखीर नहीं करना चाहिए असर को। जोहर की भी उनकी ताखीर से होती है, मगरिब की बहुत, फजर की बहुत ताखीर होती है। तो कभी कभी मैं असर की नमाज पढ़ लेता हूँ, मैं घर ही में पढ़ लेता हूँ। फिर उनकी मस्जिद में वक्त पर जाता हूँ 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे, वो नमाज फिर नफिल हो जाती है हमारी, वो नफिल हो जाती है। क्यों? तोहमत से बचने के लिए, तोहमत से बचने के लिए कहीं ऐसा साबका पड़े, कहीं ऐसा ना कहें कि मौलवी साहब नमाज ही नहीं पढ़ते, तो ये भी एक बड़ी तोहमत है ना भाई, नमाज ही नहीं पढ़ते मौलवी, तो उनके साथ जाके नफिल की नियत से पढ़ लेते हैं असर 4 रकात। तो मैं ये कह रहा था कि अगर नमाज आपने पढ़ भी ली हो, फिर भी दूसरी मस्जिद में आए, वहां वो नमाज हो रही हो, आप उसमें नफिल की नियत से शामिल हो जाएं, पीछे ना बैठे। अल्लाह के नबी ने उस साहबा को, दोनों साहबा को यही बात सिखाई, अगरचे तुमने अपने रिहाल में, अपने कजावे में पढ़ ली थी, गालिबन ये हज का मौका रहा होगा, तो सबका अलग अलग अपना रहता है टेंट, उसमें पढ़ लेते हैं सब। तो आपने कहा कि नहीं, मस्जिद में आओ, जमात हो रही है तो जमात में शामिल हो जाओ, इन्नहा लकी नाफिला, वो तुम्हारे लिए नफिल नमाज हो जाएगी। बल्कि आपने एक हदीस के अंदर कहा कि कोई तुम में से ये ना कहे कि मैंने वो नमाज पढ़ ली है तो अब मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं, अगरचे पढ़ लिया, मस्जिद में जमात चल रही है, फिर भी उसमें नफिल की नियत से शामिल हो जाए। तो ये गलत तरीका है, इन सारी आदतों को छोड़े, ये किताब और सुन्नत के खिलाफ ये काम हमारा अमल है, और बहुत सारी फजीलतों से और अजर सवाब से हम अपने आप को महरूम कर लेते हैं। लिहाजा पढ़ना है तो ठीक है, अच्छे से मस्जिद में पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ना है तो मस्जिद में पीछे बैठकर रोडों पर टहलना, गपशप करना, हंसी मजाक करना, ये सही तरीका और सही आदत नहीं है, इससे हम सबको बचना चाहिए। इंशाअल्लाह सूरह नहल की हमको तफसीर शुरू करनी थी, कल से इंशाअल्लाह सूरह नहल की तफसीर शुरू की जाएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम लोगों को किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हर तरह की बिदअत से, खुराफात से, मनहियात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।